Okay, so now we are going to revise the chapter on electricity. याद रखने ये खाली रिवीजन हो. It's not like I'm not going to uh, go in depth. Like I've already taught this chapter, so this is for those who have some doubts or who want a quick revision. Okay, so I'll go it fast. I'll make it fast also. So in electricity chapter, we have to study these few topics, as you know. First thing we have to study is about charge, and second we have to Current. current, and third is potential difference. See, I'm going to make this video on parts. Okay, so during the first part, I think these three topics will be covered, and my handwriting is not so good, so forgive me for that. See, beforehand, I'll I'll write all the topics we need to cover. See, after potential difference, chapter becomes like these are basic topics. These are must-know topics. After this, the real chapter begins, which is you have to study about Ohm's law. Okay, not exactly Ohm's law. We have to study resistance, and also resistivity. This might sound synonymous, but these two are different thing altogether. Okay, these are related, but these are not the same. Like रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी है, ऐसा नहीं होता है. रेजिस्टेंस अलग है, रेजिस्टिविटी अलग है. So after we study this topic, we get to know about a very important aspect of this chapter, which is Ohm's law. See, Ohm's law is very important, very important, because direct question त आउँछ आउँछ यसबाट. Plus sometimes we also get, not sometimes, circuit diagram. In order to solve circuit diagram questions, Ohm's law's application is must. Okay, so this fourth topic is very important. Like I can guarantee you that question will this topic, from this topic question will be surely coming in exam. Okay, so circuit diagram questions. And after this we are halfway through the chapter, and fifth topic is heat generated, or in other words, in this topic we have to study Joule's law of heating effect. Joule's law of, see, electricity has two effects, right? I'll tell you. Electricity has various effects. First is heating, and second is magnetism. For magnetic effects of electricity, there is an altogether a chapter. Okay, the chapter after this electricity is magnetism, right? So electricity has two effects: heating. It has very other effects also, like it generates light, and it also generates frequencies of, like, for communication. But heat and magnetism are two effects which are gonna study in class 10, and heating effect we are going to study in this chapter only, but magnetism, electric effects, magnetic effects of electricity we are going to study in next chapter. So Joule's law of heating effect, this is very important topic. Okay, and we also have one more topic, which is applications of Joule's law of heating effect. Okay, so we have to also study the applications. And the last topic, from which numerical questions are bound to come, this topic is electric power. Power. And in this topic we have to study like about power and also commercial unit of energy.
Hey, don't talk. Commercial unit of energy, and it is a lot confusing topic, but trust me, if you go through all this topic in detail, and by the time you come to electric power, you will find it confusing bit, but uh, it will not be a big deal. Okay, now let's start. Let's start from charge. Okay, I'll go quickly. Okay, see, charge, what is charge? What do you mean by charge? What do you mean by electric charge? A charge is a physical entity which is defined by its inside differences here. Yeah. Electrons. See, whenever in an atom there is excess of electrons or deficit of electrons, it creates charge. What? Charge. So charge we are studying about. Charge is the physical property, right? Yeah. Which is defined by excess or deficiency of electrons. So we will find in this sample paper, I am sure you all have this sample paper from Arihant, right? Huh? Price. Price? What price? क्या price? Price. पगला गया है क्या? तो see, page number 213. I know you guys have this sample paper. So here we can find definitions of electric charge. It is a physical entity which is defined by excess or deficiency of electrons on a body. A body is said to be negative charge if it gains electrons. A body is said to be positive charge if it's... See, it's very simple, okay? Like for example, this is an atom of lithium, right? Yeah. Now lithium has 3 protons, 3 electrons, right? But since its valence is 1, it will lose 1 electron, right? So it will have 3 protons and 2 electrons in normal state. So it is positively charged. What? Positive charge. Okay, it has positive charge of 1. And similarly, other atoms are also. Some atoms gain electrons, they have negative charge. This atom is losing electrons, so these have positive charge. So charges can be positive or negative, right? But when we are studying electric charge, we are talking about negative charge. What? Negative charge. Electric charge is negative. Okay, electric charge is negative. Why? Because electricity or electric charge or electric current is the flow of electrons. So this, when we are studying this chapter about charges may be positive or negative, but we are especially talking about negative charges. Okay, so let's see. See, we know 1 electron has... Okay, first of all, let's study about what is its SI unit. Its SI unit is coulomb. Spelling coulomb. C-O-U-L, coulomb. Okay, and its symbol is Q. Okay, SI unit is coulomb, symbol is Q. Now this question often comes in MCQ. Okay, it is about like, see, 1 electron has exactly 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb of charge. And mind this is in negative charge. Okay, but हामी लेख्नु पर्दैन हमेशा नेगेटिभ, यो नेगेटिभ चार्ज हुन्छ बिकज इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ चार्ज हुन्छ. एन्ड 1 प्रोटोन विल हेभ प्लस अफ 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, Yeah. so what does this exactly mean? It means that 1 electron has 1.6 into 10 to the power minus 19, right? So यसको मतलब हुन्छ कि 1000019 यति कम चार्ज हो. इनफ्याक्ट दिस इज द लोवेस्ट पोसिबल चार्ज इन द युनिभर्स. योभन्दा कम्ती चार्ज हुनै सक्दैन. यो एउटा इलेक्ट्रोनमा यति चार्ज हुन्छ. नाउ क्वेसन कम्स इज, फर 1 coulomb चार्ज हाउ मेनी इलेक्ट्रोन्स आर निडेड? आई हेभ सोन यु इन अल्सो. ठिक छ, मैले पहिला देखाएको छु कि हामीले यसलाई युनिटी मेथडले गर्नुपर्छ. एन्ड फर 1 coulomb
we need 6.25 into 10 to the power. How much? I guess 10 to the power 18 electrons. Okay. So these many electrons can make 1 coulomb of charge. Okay. So I might be wrong in this value, but I think this is the one. So we have studied all about charge. So let's carry on. क्वेश्चन करना तुम लोग, गुस्सा मत दिला अभी। हो गया तो दूसरा एक्सरसाइज कर, पहले सॉल्यूशन देख के कर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड टॉपिक। ओके, सेकंड टॉपिक इज करंट। सेकंड टॉपिक इज करंट, एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट। सो फोकस हियर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? यू नो व्हाट इज करंट को मतलब के हुन्छ भने करंट भनेको नि फ्लो, लाइक एयर ज़्यादा स्पीड में फ्लो हुन्छ, एयर करंट है बोलते हैं हम लोग, जो एयरक्राफ्ट में फील होता है ना। जो लोग एयर ट्रैवल करते हैं तो वो लोग को जर्किंग फील होता है। वो कहता है कि जब स्ट्रॉन्ग एयर करंट आते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड फ्लो होती है, तो एयरप्लेन जो है थोड़ा सा झटका लगता है। वैसे मैंने तो फ्लाइट में ट्रैवल किया है नहीं दोस्तों, आप में से कोई करेगा तो जब झटका लगेगा तब डरना नहीं, वो एयर करंट की वजह से होता है। और अगर बम ब्लास्ट ही हो जाए तो वो तो हाईजैकिंग है। और करंट वाटर का भी होता है। ओशन में हम लोग ने वाटर करंट देखे होंगे। हॉट करंट होते हैं, कोल्ड करंट होते हैं। मतलब करंट मतलब फ्लो होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट मतलब सिंपल फ्लो ऑफ चार्ज है ना। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है दोस्तों? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, इतना सिंपल डेफिनेशन लड़का लोग को याद नहीं होता है, स्टूडेंट लोग को। मैं शौक देता हूँ कि भाई क्या ही इसमें है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग को इसका सिंबल और इसका ऐसा यूनिट देख लेते हैं। सिंबल और ऐसा यूनिट, इसका सिंबल है दोस्तों आई। करंट इज डिनोटेड बाय सिंबल आई। ओके, एंड इट्स ऐसा यूनिट इज एम्पियर। ऐसा यूनिट इज एम्पियर। सो इट ऑल्सो हैज फॉर्मूला। सो करंट इज इक्वल्स टू फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। सी डेफिनेसन बाट नै उयो हुन्छ, फर्मुला हुन्छ। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज बाय टाइम। सो इफ वी से दैट 50 कूलम चार्ज flows in 10 seconds, we can say that current is equals to 5 ampere. Okay, how much charge is flowing per unit time? Rate of flow of charge, it is the current. So if we got the definition of current, got it? If you have any doubt you can ask. Okay, video will be paused, don't worry. And जो वीडियो वाले बच्चे हैं खड़े होके देखो, सोते सोते नहीं। ये जो लेट के तुम लोग पढ़ाई करते ये नहीं होता है भाई। अच्छा देखो, तो वहाँ पे हम लोग ने देखा कि करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंड आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, राइट। सो चार्ज का भी तो फॉर्मूला होना चाहिए। तो चार्ज का फॉर्मूला आ गया ना, क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, है ना। क्योंकि टी इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हम लोग ने करंट और चार्ज दोनों कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, एमसीक्यूज़ के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी है। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड टॉपिक विच इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत जनालाई डाउट हुन्छ कि के हो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के हो भने नि हेर, फर एनीथिङ टु फ्लो, यो त हामी इलेक्ट्रोन्सको फ्लोको बात गर्दैछु, बट जे पनि चिज अगर हामी फ्लोको बात गर्छौँ त वेट जे पनि चिज हामी फ्लोको बात गर्छौँ त्यसमा पोटेंशियल डिफरेंस हुनैपर्छ। फर इग्जाम्पल, अगर ये कंटेनर में पानी है पूरा, है ना, है ना, और दूसरा कंटेनर या समझ लो पॉन्ड देखा होगा तुम लोग ने, है ना, दो तालाब ऐसे कनेक्टेड रहता है, इसमें भी पानी रहेगा। ओए क्या पगला गया क्या?
पढ़ाई कर, क्या बोल रहा है? रीड कर रहे हैं, रीड। आस्ते से पढ़ाई कर। तो अगर इन दोनों में पानी फुल भरा रहेगा तो पानी फ्लो होगा क्या? इन दोनों में सपोज ये दोनों तालाब है, इस पाइप से कनेक्टेड है, ठीक है? दोनों में पानी फुल होगा तो फ्लो होगा? फ्लो कब होगा? जब इसमें आधा पानी रहेगा तब फ्लो होगा ना। आप लोगों ने सुना होगा कि ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं कि एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है ना। सिंपल सा बात करूँ तो चीज़ें, कोई भी चीज़ें जैसे एयर, वाटर, कोई भी चीज़ हो गया, ऑब्जेक्ट्स मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। साइंस में भी हम लोग ने ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा है ना। तो हम लोग को पता है कि जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से लो कंसंट्रेशन में जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है ना। पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन तो हम लोग अरिहंत से मिल ही जाएगा यार। इतना टाइम नहीं है कि मैं डेफिनेशन वगैरह लिखाऊँ। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि see, it is the amount of work done to move a unit charge from one point to another। यानी ये थोड़ा टेक्निकल डेफिनेसन देख्छ। यसको सिम्पल सा मतलब हो भने कति वर्क डन हुन्छ जब सर्किटमा इलेक्ट्रोन्सले एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्ट पुर्याउँछ, ठिक छ। लेकिन तिमीहरू यो बुकको डेफिनेसन याद गर्नु, यहाँ बढिया सा डेफिनेसन दिइरहेको छ, ठिक छ। एसचन्द बुक त सही, मलाई थाहा छ, सरी नट एसचन्द, अरिहन्त त सही छ। और अगर तिमीहरूले प्रपर स्टडी गर्नु छ त एसचन्द, फलो एसचन्द। खालि ट्युसन पढेर, लेक्चर सुनेर कोही महारत हासिल हुँदैन। तिमीहरूले बुकको लाइन बाई लाइन रिडिङ गर्नै पर्छ, ठिक छ। सो पोटेन्शियल डिफरेन्सको डेफिनेसन भइहाल्यो। सो वाट डज पोटेन्शियल डिफरेन्स मिन? सी यसको एसआई युनिट जो छ भोल्ट के हो भाइ? इभन यसको सिम्बल पनि भी लेख्छौँ हामी, ठिक छ। यसको सिम्बल भी नै लेख्छौँ। एन्ड हामीलाई थाहा छ कि अब्जेक्ट्स मुभ फ्रम हायर पोटेन्सियल टु लोवर पोटेन्सियल। त यसको अगर फर्मुला हेरौँ त V इज इक्वल्स टु वर्क डन टु एमाउन्ट अफ पर युनिट चार्ज, ठिक है ना। यो फर्मुला ध्यानले याद राख्नु दोस्तों, बिकज यसको युज छ बादमा। यसको यो चिज हुन्छ हाम्रो ओम्स लको फर्मुला डिराइभ गर्नुमा, हिटको फर्मुला डिराइभ गर्नुमा बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ डाइरेक्ट एप्लिकेसन केही छैन। नाउ लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड अ भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट विच इज हाउ डु इलेक्ट्रिसिटी और हाउ डु इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लोज, ठिक छ। इलेक्ट्रिक चार्ज कसरी फ्लो हुन्छ हेरौँ। सी इन अ ब्याट्री or a cell, this is a cell. When we have series of cells, it is called battery, okay? In a cell or a battery, we have a positive terminal and a negative terminal, right? Okay. What happens is, in the negative terminal, there are lots of electrons, lots of stacked. It has high concentration of electrons, right? And the positive terminal has deficit of electrons. It has deficit of electrons. So when we attach a circuit, when we attach a suppose here it is a bulb, okay? When we put this in the circuit, what happens? It gets connected. Now the electrons are free to move. So it moves from area of high potential to area of low potential. You got it? So this is how electricity works, and while this electron flows, it creates a current which creates energy. So this bulb lights up, giving heat, light, okay? So now what happens is, actually के भएको थियो भने नि पहिला साइन्टिस्टहरूलाई थाहा थिएन, के थाहा थिएन कि साइन्टिस्टहरूलाई लाग्थ्यो कि हमेसा हायर मतलब पोजिटिभ, लोवर मतलब नेगेटिभ, यस्तो लाग्थ्यो साइन्टिस्टहरूलाई। समझमा आयो? सो साइन्टिस्टहरूले जब हाम्रो डायग्राम बनाए, सर्किट डायग्राम, एउटा पोजिटिभ हुन्छ एउटा नेगेटिभ हुन्छ नि। सो वाट दे डिड इज दे मिस्टेकनली assumed that charge पोजिटिभबाट नेगेटिभमा फ्लो हुन्छ। दे assumed that charge, but we know that charge flows from negative to positive, right? सर त कुन चाहिँ सही हो?
पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन चार्ज तो नेगेटिव से पॉजिटिव में फ्लो होता है। तब साइंटिस्ट लोग को पता नहीं था, तब साइंटिस्ट लोग ने एज्यूम किया कि भाई हायर पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव है, उसने ऐसा सोचा। लेकिन करंट के मामले में ऐसा नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव साइड में ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में ये होता है कन्वेंशनल फ्लो, इसको क्या बोलते हैं। इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों, मैं तुम लोगों को गारंटी दूंगा। कन्वेंशनल फ्लो, कन्वेंशन मतलब है जो कोई चलते आ रहा है तो चलने दो, है ना। कन्वेंशन बाय कन्वेंशन, प्रथा टाइप का होता है। तो ऐसा मानते हैं, तो ऐसा ही मानते हैं हम लोग। लेकिन रियल फ्लो क्या है दोस्तों, रियल फ्लो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव में जाता है, नेगेटिव से लेकर के, समझ में आया। होता ऐसे ही है, लेकिन हम लोग डायग्राम सब बनाते तो ऐसे बनाते हैं। तो कभी एग्जाम में है कि कन्वेंशनल फ्लो में क्या होता है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव। रियल फ्लो में क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, सीबीएसई अच्छा बोर्ड है। सीबीएसई जो है इन डेप्थ क्वेश्चन पूछने के लिए जाना जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सर ये तो कभी सर ने बताया नहीं, अरे नहीं बताया तो क्या हुआ, मैंने बताया। और एग्जाम में नहीं आया भी तो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट तो तुम लोग को क्लियर होना चाहिए ना। नॉलेज इंपॉर्टेंट है कि मार्क्स, दोनों इंपॉर्टेंट है, समझा। तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस और थोड़ा इसके बारे में डिटेल में समझा दिया है दोस्तों। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगला ओम्स लॉ, ठीक है ना। ओम्स लॉ पढ़ने से पहले ये सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लो। और ये बेसिक्स है, इतना नहीं पढ़ समझ में आता है, इतना अगर नहीं पता है तो भाई आगे का पढ़ना बेकार है, कुछ समझ ही में नहीं आएगा। सो हम लोग ने अभी क्या किया है, देखो ये नोट्स अगर किसी रहे तो मैं दे दूँगा। हम लोग ने चार्ज पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया। और अगर इस पर कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम लोग पूछ सकते हो मेरे को। अब जो अगला टॉपिक है बहुत खतरनाक टॉपिक है, मतलब इंटरेस्टिंग भी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है।